Good morning, students. In the last class, we have completed a topic that is equity shares, and we have also started a topic that is preference shares. Okay, so share are of two types, that is equity shares and the preference shares. Okay, so in the last class, we have started also a preference share in which we have studied the what is preference share and what are the different features of the preference share. Okay, so in today's class we are going to start what are the advantages and merits of the preference shares. Okay, so first one is help to collect large amount of funds. Next one is no fixed liability. Third is no interference. Fourth one is no charge on asset. Fifth is variety, and sixth one is trading on equity. So help to collect large amount of funds. The preference shares helps to collect a huge amount of funds because cautious investors and financial institutions prefer to invest in preference shares of a company. Preference shares attract more public due to fixed rate of return, no fixed liability. Dividend to preference shares holder is paid only when the company is earning profit. During loss period, there is no fixed liability to pay dividend as in the case of loan and borrowings. Third is no interference. The preference shares holder do not carry any voting rights. The presence of preference shares does not diffuse the control of any equity shares holders. With preference shares in capital structure also, the equity shareholder retain exclusive control over the company. Fourth one is no charge on assets. Preference shares are not issued against any security. The asset of the company remain free to be offered as security for loan and borrowings. Next one is variety. A company can issue different types of preference shares according to the need of the investors and the interest of the company. Sixth one is trading on equity. The rate of dividend on the preference shares is fixed. Hence, in years of prosperity and more profit, equity shareholder enjoy high rate of earning with the presence of preference shares in the capital structure. Okay, so the first one is helps to collect large amount of fund. So the preference shares help to collect a huge amount of fund. Okay, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स को कलेक्ट करते हैं बिकॉज दे कॉशियस इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रेफर टू इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए कंपनी. ठीक है, जो भी बहुत ज़्यादा अवेयर इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो बहुत अलर्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या प्रेफर करती हैं, वो अपने मनी को फंड को इन्वेस्ट प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं. एंड प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट मोर पब्लिक ड्यू टू फिक्स रेट ऑफ रिटर्न. ओके, इसमें क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स में कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो फिक्स्ड है, इसलिए ये जनरल पब्लिक को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है टू परचेज दी प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज नो फिक्स्ड लायबिलिटी. डिविडेंड to preference shares holder is paid only when the company is earning profit. Okay, in the case of preference shares, in the case of the प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, डिविडेंड उनको शेयर्स होल्डर को तभी पेड होगा जब यहाँ पे फिक्स अर्निंग प्रॉफिट होगा, जब कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी. इन दैट केस ओनली द डिविडेंड इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर. ड्यूरिंग द लॉस पीरियड देयर इज़ नो फिक्स लायबिलिटी टू पे डिविडेंड. ओके, लॉस पीरियड में यहाँ पे कोई एक फिक्स लायबिलिटी नहीं है कि उनको डिविडेंड इतना पे करना है, एज इन द केस ऑफ द लोन एंड बोरोइंग. जैसा एक लोन और बोरोइंग के केस में होता है कि उनको फिक्स लायबिलिटी होता है कि उनको पेड करना है, बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे कोई भी फिक्स लायबिलिटी नहीं है इन द केस ऑफ लॉस. नेक्स्ट वन इज़ नो इंटरफेरेंस. So the preference shares holder do not carry any voting rights. Since we know that the जो भी preference shares holder होते हैं उनके पास कोई भी voting rights नहीं होती है. The presence of the preference shares does not diffuse the control of any equity shares. ठीक है, जो भी preference shares का अगर presence होता है वो equity shares holder के कंट्रोल को कभी भी डिप्लीट और वेस्ट नहीं करता है. विथ रेफरेंस
With preference shares in capital structure also, the equity shares holder retain exclusive control over the company. Okay, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्रेफरेंस शेयर्स का भी है, स्टिल जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं उनका कंट्रोल कंपनी पे ज़्यादा होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज नो चार्ज ऑन असेट्स. प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इशूड अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी. ओके, अगर कंपनी को क्या करना होता है या किसी इंडिविजुअल को परचेज़ करना है शेयर्स को, तो उसके लिए उसको कोई सिक्योरिटीज़ को इशू करने की कोई नीड नहीं है. प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी किसी सिक्योरिटी की कोई फिक्स्ड असेट रखना हो तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, उसके अगेंस्ट कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर इशूड नहीं होता है. द असेट्स ऑफ द कंपनी रिमेन फ्री टू बी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी फॉर द लोन्स एंड बोरोइंग. जो भी कंपनी के असेट्स होते हैं वो फ्री होते हैं कि कोई जब भी कंपनी को कभी लोन लेना है या बोरोइंग लेना है, इन दैट केस कंपनी क्या करेगी, अपने असेट को यूज़ करेगी. देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ असेट फॉर द इशूइंग ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, नेक्स्ट वन इज वेराइटी. अब कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. ठीक है, कंपनी क्या करती है, बहुत डिफरेंट टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वेस्टर. जैसी भी इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी जो भी नीड होती है और जो भी इंटरेस्ट है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या करती है, डिफरेंट काइंड्स के प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है. और लॉट्स ऑफ वेराइटी ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, okay, ki of rupees 10, 20 and so on. So different type of varieties also availed there. Next one is trading on equity. The rate of dividend on preference shares is fixed. Hence, in year of prosperity and more profit, equity shareholder enjoy high rate of earning with the presence of the preference shares in the capital स्ट्रक्चर. ओके, सो जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है किसी भी प्रेफरेंस शेयर्स पे वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है. ओके, हेंस इन द ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी मीन्स व्हेन इकोनॉमी इज इन गुड कंडीशन, सो मोर प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय हाई रेट ऑफ अर्निंग. ठीक है, जो भी इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनको हाई जो अर्निंग होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी विद द प्रेजेंस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, प्रेफरेंस शेयर्स के प्रेजेंस में जो अगर प्रॉफिट होगा कंपनी को तो दे हैव एंजॉय द हाई रेट ऑफ अर्निंग. ओके, सो बेसिकली इन द फेज ऑफ द इन द केस ऑफ द व्हेन द इकोनॉमी इज सफर द प्रॉस्पेरिटी एंड द बेटर कंडीशन. ओके, सो दीज ऑल आर द सम एडवांटेजेस और द मेरिट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स in which we have studied. It helps to control the large amount of funds. There is no fixed liability in the case of preference shares. No interference. Okay. Next one is no charge on assets. They don't need any kind of asset for the issuing of the preference shares. A large number of variety are also availed of the preference shares. And the last one is trading on equity. Okay. So we see that there are also some disadvantages or demerits of the preference shares. So first one is fluctuating and the low return. Second is dividend is not treated as an expense. So the preference shares holders get return only when a company is earning profit. The return on the preference shares is generally low and lesser than the rate of the interest on loan. The preference shares do not attract many investors as there is no assured return. Okay, so जो preference shares holders होते हैं वो they get return only when the company earning profit. जब कंपनी को प्रॉफिट होगा in that case only they get the return. The return on the preference shares is generally low. जो return preference shares पे मिलता है वो क्या होता है, बहुत लो अमाउंट में होता है and lesser than the rate of the interest on loan. जो इंटरेस्ट ऑन जो लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं उससे भी लेसर अमाउंट में जो हमको रिटर्न मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर पे, वो भी क्या होता है, लेसर अमाउंट होता है व्हेन वी कंपेयर इट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन्स. सो द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट अट्रैक्ट मैनी इन्वेस्टर. जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं करते एज देयर इज़ नो एश्योर्ड रिटर्न, कि उनके पास कोई ऐसी
एश्योर्ड नहीं है, कोई भी श्योरिटी नहीं है कि उनको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग एंड दी लो रिटर्न, कि वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा, इन दैट केस दे गेट दी हाई रेट ऑफ अर्निंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एन expense. The dividend paid to preference shareholder by the company is not treated as an expense. It is not deducted from the income of the company before calculating the income tax. The company pays income tax on the income which is distributed to the preference shareholder. Okay, dividend is not treated as an expense. Dividend को हम लोग एक कंपनी क्या करती है, एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करती. ओके, सो द डिविडेंड पेड टू द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर बाय द कंपनी इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द कंपनी. जो कंपनी की इनकम होती है उसमें से ये डिविडेंड को डिडक्ट नहीं किया जाता है बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स. ठीक है, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने से पहले इस डिविडेंड को कैलकुलेट नहीं किया जाता है. सर द कंपनी पेज इनकम टैक्स ऑन दी इनकम. ओके, और कंपनी क्या करती है, इनकम टैक्स पे करती है ऑन द इनकम विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर. जो बेसिकली क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. सो डिविडेंड इज़ नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. उसको एक एक्सपेंस की तरह नहीं लिया जाता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज नो वोटिंग rights. So the preference shares holder generally do not carry any voting rights. These shareholder have no say in the management. These shareholder getting voting right only on the any resolution regarding winding up of the company or the repayment or the reduction of the share capital. Next one is fixed obligation. The rate of dividend paid to the preference shareholder is fixed. During time of low profit also company has to pay a fixed rate of dividend to its preference shareholder. Next one is employee stock option. It simply means the option given to the directors, officers or the employees of the company or of its holding company or the subsidiary company or the companies, if any, which gives such director, officers or the employees the benefit of or right to purchase or to subscribe for the share of the company a future date at the predetermined price. Okay, so no voting rights. Okay, we know very well that the preference shareholder do not have any kind of voting rights. These shareholder have no say in the management, means उनका कोई बहुत important role नहीं होता है मैनेजमेंट में. दीज शेयर होल्डर डू नॉट गेट एनी वोट. दीज शेयर होल्डर गेट वोटिंग राइट ओनली ऑन दी एनी रिजोल्यूशन. ओके, किसी रिजोल्यूशन पे ही वो क्या होता है, उनको वोटिंग राइट मिलती है रिगार्डिंग दी वाइंडिंग अप ऑफ दी कंपनी. जब कंपनी का क्लोज डाउन और वाइंडिंग अप होने लगती है तो उस रिजोल्यूशन पे उनको वोटिंग राइट्स मिलती है और रिपेमेंट और दी रिडक्शन ऑफ दी शेयर कैपिटल. और इन द केस ऑफ जब उन्हें शेयर कैपिटल को रीपे करना होता है और उसको रिड्यूस करना होता है शेयर कैपिटल को, इन दैट केस दे गेट दी वोटिंग राइट्स इन दी कंपनी. ओके, अदरवाइज दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वोटिंग राइट्स. नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन. द रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज फिक्स्ड. ओके, जो भी रेट ऑफ डिविडेंड पेड होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है. ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो प्रॉफिट ऑल्सो कंपनी हैज़ टू पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. अगर प्रॉफिट कंपनी में बहुत लो भी हो रहा है, इन दैट कंडीशन भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को. ओके, सो अगर इनका जो रेट होता है फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, बट अगर कंपनी क्या है, लॉस सफ़र कर रही है, लॉस में है, प्रॉफिट इज़ वेरी लो, इन दैट केस भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, इनका जो रिटर्न है उसको पे करना ही पड़ता है, बिकॉज दे आर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन. उनकी जो ऑब्लिगेशन है वो क्या है, फिक्स्ड है. ओके, सो एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन. व्हाट इज़ एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन? इट सिंपली मीन्स द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स
ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। ओके, ये ऑप्शन प्रोवाइड होता है किसको? डायरेक्टर्स को कंपनी के, ऑफिसर्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी को, और इट्स होल्डिंग कंपनी, और उनको जो इस कोई भी कंपनी को होल्ड कर रहा है, और सब्सिडियरी कंपनी मीन्स एक कंपनी के साथ जो उसकी सब्सिडियरी कंपनी है, एफिलिएटेड कंपनी है और कंपनीज है। ओके, ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इफ़ एनी विच गिव्स सच डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ द बेनिफिट और टू राइट टू परचेज और टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये क्या करता है कि ऑप्शन प्रोवाइड करता है डायरेक्टर को, एम्प्लॉय को, और बेनिफिट टू द राइट टू परचेज। क्या है कि बेनिफिट प्रोवाइड करता है, राइट प्रोवाइड करता है परचेज करने का, सब्सक्राइब करने का शेयर्स की कंपनी को एज अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। की फ्यूचर डेट में वो कभी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। की उस शेयर्स का क्या होगा, एक प्राइस का डिटरमाइंड होगा कि प्राइस के कोई भी शेयर्स 10 का होगा, 20 का होगा, 100 का होगा, तो वो शेयर्स का रेट क्या होता है, वो प्री डिटरमाइंड होता है। और जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के या अदर सब्सिडियरी कंपनीज़ हैं, एफिलिएटेड कंपनीज़ हैं, एज वेल एज एम्प्लॉय ऑफिसर्स भी क्या करते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं और कंपनी के शेयर्स पे सब्सक्राइब करते हैं फॉर द फ्यूचर डेट एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्राइस क्या होती है उस पर, प्री डिटरमाइंड होती है, पहले से डिटरमाइंड कर दी जाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज what is the difference between the equity shares and the preference shares? Okay, till now we have studied what is the equity shares, what is the meaning of the equity shares, features of equity shares, merit and demerit of the equity shares, and we have also studied what is the preference shares, meaning of the preference shares, features, merit and demerit of the preference shares. But now we are going to study the what is the basic difference between the equity shares and the preference shares, कि इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है. So we will go through the different point of difference as well as on the basis of the some difference. Okay, so let's start according to the face value. The face value of equity shares is generally low. Okay, so जो equity shares होते हैं वो बहुत जनरली लो प्राइस के होते हैं. ओके, और द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज़ जनरली हाई. और जो फेस वैल्यू होती है कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स की कि वो कितने का है, 10 रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का है, 30 रुपीज़ का है, तो वो जो शेयर्स होते हैं जो लो फेस वैल्यू होती है, जो बहुत लो प्राइस के होते हैं, दे ऑल आर द इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू क्या होती है, वो बहुत हाई होती है. Next is dividend. The dividend is paid to the equity shareholder after paying dividend to all the shareholder. Okay, जो dividend paid होता है equity shareholder को आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑल दी शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल शेयर्स होल्डर हैं, इधर दे आर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, तो सबको पेड करने के बाद ही इक्विटी शेयर्स होल्डर को पेमेंट होता है एज अ डिविडेंड. The preference shares holder get the fixed rate of dividend before equity shares holder. और जो preference shares holder होते हैं उनको क्या है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनको प्रोवाइड हो जाता है बिफोर इक्विटी शेयर्स होल्डर. इक्विटी शेयर्स होल्डर को पेड करने के पहले ही प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड हो जाता है. नेक्स्ट वन इज वोटिंग राइट्स. So equity shares holder get all the voting rights in the company. Okay, we know very well that the equity shares holder have the all the voting rights. उनके पास सारी voting rights होती हैं कंपनी में करने की. But in the preference shares no voting rights under the normal condition. Okay, कोई normal condition पे preference shares holder को कोई भी voting rights नहीं होती है. They get voting rights when dividend is not paid for the 2 years. अगर उनको वोट करने का ऑप्शन तभी मिलता है जब डिविडेंड क्या है, 2 और मोर देन 2 ईयर्स से वो डिविडेंड पेड नहीं हुआ है. इन दैट केस वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अट्रैक्शन. द इक्विटी शेयर्स अट्रैक्ट बोल्ड एंड एडवेंचरस इन्वेस्टर. ठीक है, जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो एडवेंचरस, जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वैसे ही इन्वेस्टर्स इसको परचेज करते हैं. बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट द
कॉशियस मीन्स एंड द कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मीन जो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, कि जो कंटिन्यूसली प्राइस को देखता है कितना फ्लक्चुएट हो रहा है. सो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट किसको करते हैं, कॉशियस एज वेल एज कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को. बट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्डर दे आर वेरी बोल्ड एंड एडवेंचरस. उन्हें कोई ये टेंशन नहीं होती कि शेयर्स की कितनी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, वो शेयर्स को परचेज कर लेते हैं. बट प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं. वो प्राइस को देखते हैं या कंपनी के शेयर्स को देखते हैं कि ये इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इन दैट केस ओनली दे परचेज दी प्रेफरेंस शेयर्स. नेक्स्ट वन इज रिस्क. The equity shares holder are the primary risk bearer of the company. The risk involved in preference share is relatively less. Okay, जो रिस्क होता है इक्विटी शेयर्स में, ये रिस्क क्या होता है, रिस्क जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी रिस्क बेयरर होते हैं. मतलब कि इक्विटी शेयर्स में रिस्क की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और जो शेयर होल्डर होते हैं वो प्राइमरी रिस्क बेयरर होते हैं. मींस वो सारे रिस्क सबसे पहले वही फेस करते हैं. बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर द रिस्क इन्वॉल्व इन प्रेफरेंस शेयर इज़ रिलेटिवली लेस. और इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो एज़ कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर्स होल्डर, इक्विटी शेयर्स बहुत लेस अमाउंट में होता है. नेक्स्ट वन इज़ रिफंड ऑफ कैपिटल. At the time of winding up of the equity shares holders are refunded only after the preference shares are paid. Okay, रिफंड ऑफ कैपिटल, कैपिटल जो अमाउंट है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसकी रिफंडिंग की बात क्या होती है. तो जब व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्विटी शेयर्स, सो जो भी अगर कंपनी हमारी वाइंड अप हो रही है मींस क्लोज्ड हो रही है, तो इक्विटी शेयर्स होल्डर आर रिफंडेड ओनली आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड. जब प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को सारा कैपिटल रिफंड हो जाएगा, मनी रिफंड हो जाएगा, आफ्टर डैट ही इक्विटी शेयर्स होल्डर को रिफंड होगा. बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स at the time of winding up the preference shares get priority over the equity shares for the refund of the capital. Okay, but in the case of preference shares क्या होगा कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होने लगेगा, कंपनी क्लोज डाउन होने लगेगी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को ओवर द इक्विटी शेयर्स होल्डर. इक्विटी शेयर्स होल्डर के पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को प्रायोरिटी दी जाएगी फॉर द रिफंड ऑफ द कैपिटल. की जो भी कैपिटल के रिफंड को हम पहले प्रेफरेंस शेयर्स को करेंगे, आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द इक्विटी शेयर्स होल्डर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज रिडम्पशन. Okay, so the equity shares are never redeemed or pay back during the lifetime of the company. Means redemption means कि all the values which is paid back. So equity shares holders, equity shares क्या होती है, इनकी जो values होती है shares की, ये permanent capital होते हैं. We have already studied कि these all are the permanent share capital. तो ये value इनकी कभी भी वैल्यू को पे बैक नहीं करते, ये हमेशा परमानेंट होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. जब तक कंपनी रहेगी तब तक ये वैल्यू क्या होगी, रिडीम्ड और पेड नहीं होगी. बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इट मे बी रिडीम्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. और इनकी वैल्यू क्या है, पे बैक हो जाएगी जैसे ही आपका जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम लिया गया होगा, 2 years 5 years, वो जैसे ही ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या होगी, रिडीम्ड हो जाएगी. और एट दी ऑप्शन ऑफ दी कंपनी, अगर कंपनी के ऑप्शन है कि कंपनी उन शेयर को परचेज सोल्ड आउट करना चाह रही है, अदर मेंबर्स को परचेज करना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर डेट विद ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, तो वो क्या कंपनी क्या करेगी, वो सारे वैल्यू को और वो सारे शेयर्स को रिडीम कर देगी. ओके, सो इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी इक्विटी शेयर्स एंड दी प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज, it is the also one of the source of the owner's fund that for the long term finance, that is retained profit or earning. Retained earning or the retained profit, it is also called the accumulated profit. So retained profit are also known as plowing back of profit, retained earning, self financing or internal financing, or reserve or surplus. Okay, retained earning refers to undistributed profit after the payment of the dividend and taxes. It provides the basis of the expansion and the growth of the companies. It is considered the most important source of finance since it is internally generated. This method of financing is known as self
financing. Okay, so retained earning is, or the retained profit is also called the plowing back of profit, retained earning, self financing, internal financing और reserve और surplus. Okay, so retained earning को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? plowing back of profit, retained earning, self financing, internal financing और reserve और surplus. So what is retained earning? Retained earning simply means undistributed profit after the payment of dividend and tax. Okay, जब भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जाम्पल कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो 10 लाख का अगर प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने क्या किया? जितने भी शेयर्स होल्डर थे उनको डिविडेंड पेड कर दिया, जितना भी कंपनी को टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को, या कोई इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स या प्रोडक्शन पे टैक्स, जो भी टैक्स था उसको पेड करना था। तो 10 लाख में अगर उसका 8 लाख क्या हो गया? ये सारा पेमेंट हो गया, या 6 लाख का ये सारा उसने डिविडेंड पे किया, टैक्स पे किया, तो ये जो 4 लाख बचा ये किसका क्या हो गया? कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग हो गई, रिटेन्ड प्रॉफिट हो गया। मीन्स ये प्रॉफिट उसका क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, वो अब उसके पास एज अ रिजर्व रहेगा। जब कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहेगी, एक्सपैंड करना चाहेगी, तो इस मनी को वो क्या करेगी? वहाँ पे इंक्लूड करके अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है। ओके, सो इट इज़ द सिंपली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ द different taxes and the dividend to the shares holder. Okay, so it provides the basis for the expansion and the growth of the company. Okay, through the retained earning कंपनी क्या करती हैं? अपने बिजनेस को एक्सपैंड और ग्रोथ करने के लिए इसका यूज़ करती हैं। इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है किसी भी कंपनी के लिए, सिंस इट इज़ इंटरनली जनरेटेड, क्योंकि ये कंपनी के इंटरनली जनरेटेड हो रहा है। क्यों? कंपनी अपने प्रॉफिट को देख रही है, उसके अकॉर्डिंग सब पेड कर रही है, आफ्टर डैट उसके पास जो बच रहा है वो उसकी रिटेन्ड अर्निंग हो जा रही है। दिस मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इज़ नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग। ओके, ये इंटरनल जनरेटेड होती है, मतलब अपनी कंपनी के अंदर ही जनरेट हो रही है, और इसको हम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। मतलब कंपनी अपने अंदर ही सेल्फ ही इसको फाइनेंसिंग करी कि उसका जितना प्रॉफिट हुआ सब उसको पेड करके उसके पास जितना बच गया, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। ओके, now the next one is what are the different features of the retained earning. First one is cushion of the security, second one is fund for new and innovative projects, third one is medium and the long term finance, fourth one is conversion into the ownership fund. So first is cushion of the security. The retained earning are considered at the cushion of the security because they provide support in the time of adversity when a company finds it difficult to arrange finances from the any other sources. Okay, it is the cushion of the security, means it is just like a protection or the shelter for the any company. Means the retained earning are considered at the cushion of the security because they provide support in the time of adversity. मीन्स अगर बहुत कंपनी के लिए एडवर्स सिचुएशन है, बहुत वर्स्ट सिचुएशन है कि उसको कहीं से भी फंड नहीं मिल रहा है, इन दैट केस कंपनी क्या करेगी? अपने जो भी रिटेन्ड अर्निंग को उसको यूज़ कर सकती है फॉर द एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. सो व्हेन अ कंपनी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अरेंज फाइनेंसेस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कि कंपनी किसी और सोर्स से फाइनेंस को क्या करे, अरेंज नहीं कर पा रही, जनरेट नहीं कर पा रही, इन दैट केस कंपनी क्या करेगी? अपना जो भी उसने रिटेन्ड अर्निंग रखा है उसको वो यूज़ कर सकती. सो इट इज़ कॉल्ड द cushion of the security. Okay, now the next one is funds for new and innovative project. तो कंपनी को अगर क्या करना है, कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है जिसमें कोई न्यू आइडियाज़ हो, इन दैट केस कंपनी को क्या चाहिए होगा? फंड चाहिए होगा. तो कंपनी क्या कर सकती है? वो जो उसके पास रिटेन्ड अर्निंग है उसको वो यूज़ करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है फॉर देयर डिफरेंट projects. Okay, so the retained earning are the common source of the funds for the financing risky and innovative projects. This fund is generally used for the research work expansion project. Okay? ये जो retained earning होता है common source होता है कंपनी के लिए for the financing risky and innovative project, कि कंपनी कोई न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करी जिसमें बहुत ज़्यादा
जो बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, उसमें फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो कंपनी इन दैट केस वो जो फाइनेंस है, जो मनी है, वो उसको यूज़ कर लेगी। एंड दिस फंड इज़ जनरली यूज फॉर द रिसर्च वर्क, एक्सपेंशन, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। जो ये फंड है, रिटेन्ड अर्निंग है, कंपनी इसीलिए रखती है कि कभी इन फ्यूचर उसकी एडवर्स सिचुएशन आ जाएगी, उसको कहीं से भी मनी और सोर्स ऑफ मनी नहीं होगा, तो वो कहाँ पे जाएगी? वो उस सिचुएशन में अपना जो भी उसने रिटेन्ड अर्निंग किया है, अपनी मनी को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, सेव किया है, वो उसको यूज़ करेगी। सो दिस फंड इज़ जनरली यूज फॉर द रिसर्च वर्क, एक्सपेंशन, प्रोजेक्ट। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, इन सारे जो फंड को अपने रिसर्च वर्क, मीन्स जो उसको नया रिसर्च करना है, कुछ डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए, कुछ नया प्रोजेक्ट पे अगर उसको एक्सपेंशन करना है या इंट्रोड्यूस करना है, इन दैट केस द कंपनी uses the that retained earning, as well as if they want to expand their project, in that case they use the returned earning. So it's all about the today's class. We will continue further in the next class.